Good morning, students. We are going to continue our first chapter, air, water and land as a natural resources. Our natural resources, air, water and land. We already seen about air. What is air? What is the constituent of air, as well as what is the uses of air. Now we are going to see another one. Before that, we see here, always remember the living world on the earth is sustained due to the balance between the various gases and other constituent of air. The atmosphere is very important filter. It allows the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for prevent the harmful elements for reaching the earth, just like ozone layer is present due to that the ultraviolet rays of the sun is not come on the earth as it is. The atmosphere, that fog, clouds, snow and rain are produced due to this sunlight, due to this atmosphere. Now see here, pollution is the main factor of our atmosphere. Now pollution is become a problem and the main factor of our atmosphere. The air is polluted. The air is polluted means what? The air is polluted with the harmful substances released in air through the combustion of fuels. All the above pictures see in your textbook 1.4 air pollution. All above picture show large scale emission of smoke through the different agencies. The smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between the constituent of air. This is called air pollution. Air get disturbed, contaminated due to the fuel-like factors. That is called air pollution. Harmful gases are given out through combustion of the fuel in vehicle, and it is being industries, and also through the incomplete combustions of fuel like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. एयर पोल्यूशन होता है मीन्स क्या? एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है. कैसे? कुछ हम जलाते हैं या फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो फ्यूल हम बर्न करते हैं, उससे जो निकलता है धुआं, वो जब हमारे एयर में घुल मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं पोल्यूशन. और ये कुछ पोल्यूशन के रास्ते हैं. द हार्मफुल सब्सटेंसेज रिलीज्ड इन एयर थ्रू द कंबशन ऑफ फ्यूल. फ्यूल के जलने से कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और हमारी एयर में मिल जाते हैं. उसमें से एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. These are the fuel which is mixed with air after combustions. Now here is given the ozone layer. The protective shell, there is a layer of ozone, O2 gas, in the lower part of the stratosphere. Ozone gas is not directly useful for the survival of living things. Survival of living things के लिए ओजोन लेयर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है. Yet it is very important for living thing to have this layer of ozone at high altitude around the earth. फिर भी ये ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि ये पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर है, जिसके वजह से द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग इज गेट एब्जॉर्ब. तो जो अल्ट्रावायलेट किरण जो सन की डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पे आती है, उसको आने से अटकाव कौन करता है? ये ओजोन लेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं. ये अल्ट्रावायलेट वेव जो है, रेज जो है सन की,
वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. दैट्स वाई वी कॉल दिस layer, ozone layer is protective layer. Very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on earth is protected. Indirectly, this ozone layer is helpful to us to survive on the earth. The ozone layer is destroyed if the chemical gases like carbon tetrachloride or chlorofluorocarbon used in air conditioner and refrigerator mix with the air. ये जो ओजोन लेयर है उसको प्रॉब्लम हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाती है किसकी वजह से? जब कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस निकलती है उससे, और दूसरे तरफ CFC मीन्स कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है हमारे रेफ्रिजरेटर से और AC से निकलते हैं. ये जो दो गैसेस है इसकी वजह से ये ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो जाती है. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर हम तो रेफ्रिजरेटर यूज़ करती है, AC यूज़ करती है, तो हमको कंबशन कम करना चाहिए, इसका यूज़ कम करना चाहिए. आप सोचो और मुझे बताओ चैट बॉक्स में. The 16th of September is declared as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone. तो 16 सितंबर जो है ये दिन ओजोन प्रोटेक्शन डे के तहत मनाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, सबको बताते हैं और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है इसके बारे में प्रोजेक्ट भी किए जाते हैं और अवेयर भी किया जाता है लोगों को. Let us use your brain power. What would have happened if there is no air on the earth? क्या होगा अगर अर्थ में एयर ही नहीं होगी? बता सकते हो आप? Can we survive without air? No. Without air we can't survive. That's why we must need air to survive. Next natural resources है water. First we see about air. What is the constituent of air? सबको याद है? मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए आपको. Now we see about water. Observe how much water is used and for what purpose it is used in your house for a whole day. Record it is in a chart like in one shown here. Discuss this data in the class. Divide the total amount of water used in your house by the number of person to find out how much water each person needs. पानी के सिवा कुछ हो सकता है क्या? हम जैसे ही उठते तब से लेके हमको पानी चाहिए होता तो रात तक हम पानी पहले तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए. बिना पानी के कुछ हो ही नहीं सकता. एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पानी तो अनिवार्य है. वनस्पति भी, प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको भी पानी की मात्रा चाहिए होती है. यह टेबल है उसमें दिखाया गया है कि हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. पहले पर्पस फॉर विच वाटर इज यूज: बाथ, brushing teeth, washing clothes and utensils, mopping the floor, drinking, cooking, सबके लिए पानी चाहिए होता है. तो हर घर में कितना यूज होता है दिन का, ये आपको इस चार्ट में लिखना है. Will you see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water? पानी के बिना रह सकते हो? एक दिन पूरा रह सकते हो? नहीं. We can't survive without water. Our body almost 70% is with full of blood. Means it's a water. Almost impossible for us to spend even a single day without water. We need to drink 3 to 4 liters water every day so that all our body functions run smoothly. जैसे कि मैंने बोला ब्लड है हमारे बॉडी में, वाटर है, वाटर जो है 3 से 4 लीटर पानी तो हमको दिन का पीना ही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के
जो भी प्रोसेस चल रही है, फंक्शन चल रही है, वो अच्छी तरीके से चलते हैं। अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी के फंक्शंस अच्छे से नहीं होंगे। अदर लिविंग थिंग also required water, although the amount of water they need may vary according to the size of their body. Thus we see that water is very important. If hydrogen gas burns in air, it combines with oxygen and water is formed. We have learned about some characteristic of water in the previous standard. Previous standard में आपने देखा होगा ना, वाटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाटर बॉडीज कैसी फॉर्म होती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ, इन नेचर वाटर्स ऑकर्स इन 3 स्टेट. वाटर डज नॉट हैव कलर. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर. वाटर कलरलेस होता है, वाटर को कोई भी कलर नहीं होता है। जिसमें भी डाल दो, जिस कंटेनर में भी डाल दो, वो कंटेनर का शेप और कलर, उसमें जो भी पानी में कलर डाल दो, वो कलर पानी ले लेता है। इट्स नो डोंट हैव टेस्ट एज वेल एज ऑर्डर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज वाटर नेवर स्टेल. वाटर कभी भी खराब नहीं होता है। Many substances already dissolved in water, therefore water is a universal solvent. Water क्या बोला जाता है? Universal solvent. Why? Because all soluble substances are dissolved in water. जो भी डिजोल्व होने वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे वाटर में डिजोल्व होते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। The blood of animals and the sap in plant contain a very high proportion of water. Blood में मैंने जैसे ही आपको बोला कि ब्लड में सबसे ज़्यादा पानी होता है, एंड प्लांट के सैप में भी पानी होता है। No living thing can survive without water, therefore it said that water is life. जो भी लिविंग थिंग है, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, all need water to survive. पानी के बिना ना प्लांट्स जिंदा रह सकते हैं, ना ही एनिमल जिंदा रह सकते हैं। दैट्स वाई वी कॉल दैट वाटर इज लाइफ. बिना वाटर के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। अदर्स डिस्कशन नाउ डू हियर. वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ कितना है? लास्ट ईयर पढ़ा है ना आपने, कितना है? इट्स अबाउट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इज 2.7%, एंड सी ओशन में कितना होता है? 97%. ओके, और पूरा लैंड कितना है? 29%, और पूरा वाटर कितना है? 71%, और 71% में भी पीने लायक पानी बस 3%, ज़्यादा होगा, 2.7% है। और जो वाटर बॉडीज के फॉर्म में है, सी वगैरह में, वो 97% है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस. ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशन. वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग इज ओनली 2.7%. ये बाकी का काम, पानी हमारे कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। ये 2.7% जो है पूरी अर्थ में इतना ही पानी है जो पोर्टेबल है, पीने लायक है, उसके अलावा बिल्कुल ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, वो आप देखो। वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ बिकॉज सी वाटर इज साल्टी. सी वाटर बहुत ही साल्टी है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिक्स हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो साल्टी है और पीने लायक नहीं होता है। वी कांट ड्रिंक दैट वाटर एनी मोर. सम वाटर इज इन द फ्रोजन स्टेट, जैसे कि ये अंटार्कटिका, हिमालय में, बर्फीले प्रदेश में वो जो है वो फ्रोजन स्टेट में है। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो पानी पीने के लिए बहुत ही कम पानी अवेलेबल है स्टेट जो लिक्विड स्टेट में है। A very small quantity of water is available for drinking, yet
इज इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग। जितना भी पानी है अवेलेबल 2.3%, वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए और सारे एनिमल्स लिविंग थिंग्स के लिए, जिंदा रहने के लिए काफ़ी है। फॉर विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज्ड। जो मैंने इन बिगिनिंग आपको बोला कि हमको किस किस के लिए पानी चाहिए होता है, वो तो हमारी ज़रूरत ही है। पीने के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए हमको पानी चाहिए होता है। बट हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी हमको पानी चाहिए होता है। डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू। जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही दूसरे लिविंग थिंग्स भी करते हैं क्या? We use water in a large quantities. We have learned that water on the earth is regulated through the water cycle. सबको पता है, आपने बहुत सालों से पढ़ रहे कि वाटर साइकिल होता है, कंडेंसेशन का साइकिल होता है, जिसकी वजह से पानी रिसाइकल होते रहता है। जैसे कि समंदर का पानी है, सी वाटर है, ओशन वाटर, ये स्टीम होके ऊपर जाता है, बादल बनते हैं और बाद में ये बादल से हमको बारिश नीचे गिरती है। ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, आपको सबको पता है। तो इसी तरह ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। वी हैव लर्न द वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल। द वाटर वेपर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओशन इज इन द मेन सोर्स ऑफ वाटर in the water cycle. It gets converted into rain, creating fresh water source on the earth. रेन जो है ये फ्रेश वाटर सोर्स है। ये वाटर साइकिल की वजह से ही हमको ये पानी मिलता है। यूजेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ 1.6 फिगर आप देख लो। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल sources such as stream, river, ponds, springs and lakes. हमको पानी कहाँ से मिलता है? स्प्रिंग, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम, जो भी है वहाँ से। हमारे घर में तो नल से ही पानी आता है, टैप से ही आता है, लेकिन वहाँ तक वो कैसे आता है? ओके, तो हमको ये ऐसे पानी मिलता है। मैन ऑल्सो डिग्स वेल एंड बोरवेल्स ऑफ टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। आदमी क्या किया है? वेल्स, जो क्या बोलते हैं आप उसको? विहीर, मराठी में विहीर बोलते हैं, वो है। बोरवेल्स तो हर एक अपार्टमेंट में आजकल होता है। बोरवेल्स भी खोदे हैं ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैन हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बांध्स एंड डैम्स फॉर वेरियस साइज ऑन रिवर। रिवर में देखा है डैम्स है ना, बहुत बड़े बड़े डैम्स है। जैसे महाराष्ट्र में राधानगरी डैम्स है और बड़े बड़े डैम है। हमारे बदलापुर में कितने डैम है? 12वीं डैम। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो आप कि हमारे बदलापुर में कितने डैम है। डैम किस लिए बनाए जाते हैं? टू स्टोर द वाटर। जो बरसात में पानी आता है उसको स्टोर करते हैं, उसके लिए। तो बदलापुर में कितने डैम है उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, नाम कलेक्ट करो उसके। दिस इज योर होमवर्क। Due to the uncontrolled use of water for an increasing pollution industry and farming, it is now a short supply. Water scarcity has become a serious problem. Scarcity of water means क्या? पानी की कमी। आजकल हम बोल रहे हैं ना, एक दिन के बाद पानी आता है घर में, 2 दिन के बाद आता है, यहाँ पे पानी आया नहीं वहाँ पे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर रहे। हम पानी, वैल्यूबल पानी को हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनकंट्रोल यूज हो रहा है उसका, जिसकी वजह से हमको पानी की दिक्कतें आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यूज वाटर स्पेरिंगली मीन्स पानी का इस्तेमाल धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करो। टीवी पे कितने सारे एडवर्टाइज आते हैं ना, आप देखते होंगे। ये सोशल इशू के तहत बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, हमको उससे सीखना भी चाहिए। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकोलेट। पानी को वहीं पे ब्लॉक करो, जिसकी वजह से वो जमीन में फिर से जाए। वो मराठी में स्लोगन है ना, पानी अडवा पानी जिरवा।
महाराष्ट्र शासन का, वो इसके लिए ये है, पानी को वहीं पे आप ब्लॉक करो जिसकी वजह से वो जमीन में जाएगा फिर से। स्टोर वाटर वेर एवर पॉसिबल, स्टोर करो वाटर को जहाँ जहाँ पॉसिबल है। रीयूज वाटर वेर एवर पॉसिबल, जहाँ भी आप रीयूज कर सकते हैं उसका रीयूज करो। रिमेंबर स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस, जो पहले मैंने इम्पोर्टेंट करके बोला था आपको ये कैरेक्टरिस्टिक, कि जो भी स्टोर वाटर है वो कभी भी खराब नहीं होता है। तो पानी की इम्पोर्टेंस हमने देख ली है, कितनी ज़रूरी है पानी हमारे लिए। तो आपको होमवर्क है कि आप राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूजेस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और आपको ये चैप्टर फिर से 2 बार पढ़ना है। फॉर टुडेज लेक्चर it's up to this topic, it's okay. In our next lecture we'll take new topic, it's a land. We will do continue this chapter in our next lecture. Till then, goodbye, thank you.